A very warm welcome to one and all to another inspiring episode of Success Tales. Today, we are having a very special guest with us who is an entrepreneur by heart and by profession as well. Having 23 years of experience, which includes companies such as Tata Communications, Reliance Communications, Airtel, and HFCL, he is a technocrat with rich experience in global service management, project and program management, service delivery, sales management, and vendor management in cloud, telecom, network, data center, and service management as well. He is also associated with National Productivity Council as a corporate trainer for providing innovative thinking and entrepreneurial training to students and working professionals. He is none other than Mr. Tarachand Dhondial, the founder of Skill Certifica Global. Skill Certifica is an Indian edtech firm headquartered in Singapore, with other offices being in India and Nepal. Skill Certifica is a global leader in the certification of professional skills, partnering with organizations to offer unmatched, impeccable innovation, entrepreneurship, and entrepreneurship experience through learning material, business thinking skills, and life projects. Mr. Dondial is the co author of two international bestsellers, Resilience and India A Billion Dreams Rise from the Dust. Hello, sir. A very warm welcome to you. Thank you so much, Sugandha. And first of all, I would like to thank you, the entire team, for inviting me for this forum. Uh, and I will ensure that most of the startup will get some benefit through this interview as well. Definitely, sir. Thank you so much for accepting our invitation and taking out time for us, sir. So, before proceeding with the interview, I would like to ask you that, before 2014, you worked for many Fortune 500 companies. You were well settled, but what motivated you to become an entrepreneur, sir? Very interesting question. In fact, I was not expecting that you are going to ask me this question because most of the people actually focus on the present journey. But anyway, till 2014, yes, I was part of corporate, and all of a sudden there were certain things which happened all of a sudden, and then I thought now the time has come to say goodbye because I did my BTech in mechanical engineering, and after that I always believe in doing things differently. So that was a quick decision in 1997, and I thought I will not be a part of mechanical engineering. So I immediately jump into the ICT model, that is information and communication technology. Although it could be a psychic decision, somebody can say like that. But I will always believe in doing things differently so that the result will be different. Because I don't want to be a part of red ocean strategy. I always want to keep myself into the blue ocean so that the competition will be less and you will be well adversed with the new kind of technology. So in 97 I took this decision, and again in 2014, because I was aware about that market is going to take a shift because telecom was in the declining stage, and we have identified this trend well in advance. So I thought to quit my job from Tata Communication, and then I started working on my own tech organization, and it's been 7 years now, and the journey was interesting. Right, sir. So, I would like to tell to our viewers, I would like to request you to tell our viewers about Skill Certifica. What is it about, and what are the audience that it is catering to? Okay. Uh, स्किल सर्टिफिका एक रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, Okay, sir. और जो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग टीम है ये इनोवेशन और रिसर्च के ऊपर बेसिकली काम करती है। और हमारा जो फोकस एरिया है वो इनोवेशन जो है वो इट शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्ट टू ओनली अर्बन एरिया, इट शुड गो टू द villages, kasbas and all districts of India, so that we can identify few good innovators who can do something different for India, because our research is going to handle one specific question, that why India is not able to innovate. Whereas if you look at the history, India once was an innovation hub, right? And India typically followed the process of Gurukul system. But if you look into the present scenario, where is that Gurukul system? That Gurukul system is actually missing. So we started looking into this direction,
that how India can be an innovation hub in the next 5 to 10 years. So we have identified 3 different dots for this particular journey, but ये बहुत instantly नहीं हुआ, because हमने जो है reverse direction में इन dots को combine किया. Initially we started with the program of entrepreneurship, then we find out few kind of lacuna in the entire process of entrepreneurship, because we were able to identify that most of the startups were not able to survive. Then we thought, okay, it means there is something which is missing in entrepreneurship. Then we started working towards innovation framework. Then this innovation framework was little bit successful, but again, the entire team of Skill Certifica was not very happy with innovation framework and the entrepreneurship. There was one more dot which was missing. 4 साल लगे इसको सोचने में कि क्या मिस है अभी भी, और 4 साल लगाने के बाद, रिसर्च करने के बाद, मार्केट में मतलब ग्राउंड लेवल तक जाने के बाद ये आइडेंटिफाई हुआ कि एक्चुअली थिंकिंग ही मिसिंग है. और इस थिंकिंग को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और इसको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में हमने कन्वर्ट किया. और मैं आगे आपको बताता हूँ वो थिंकिंग कैपेबिलिटीज किस तरीके से काम करेगी. बट इस तरीके से हम लोगों की ये जर्नी स्टार्ट हुई, और आज की डेट में आई थिंक we are the only company in India who is working on this platform of thinking capabilities using artificial intelligence, data analytics and cloud. Very soon we are going to incorporate blockchain technology in our existing model. So it will be altogether a new model for not only for youth, but at the corporate level, it will be a game changer actually. So that we can make India a innovative hub. Right, sir. Wonderful, sir. Sir, I read it in a magazine where you said that you started your EdTech company in 2014. You thought it was very easy to start a venture, but it was a myth. You sold your watches, your shoes, and your car to take your venture a cut above. Please tell us about your struggles and your journey, sir. हाँ, ये actually I wrote this article some time back, and thanks for sparing time to read that article. और मुझे ऐसा लगा कि now the time has come to share about your thoughts, your learning, your failure and your success. Yes, sir. Definitely 2014 में मुझे कुछ पीएफ का पैसा मिला था टाटा ग्रुप से, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो है पैसा इट इज मोर देन सफिशिएंट. एंड जब हम कॉर्पोरेट से बाहर आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें हमारे पास में और सक्सेस बहुत इजीली हमारे को मिल जाएगी, क्योंकि वो एक सक्सेस का एक फ्लेवर हमारे पास था पहले का, क्योंकि 17-18 साल कॉर्पोरेट में लगाने के बाद ऐसा लगता है कि हम बहुत सारे काम अपने आप कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है. वो पीएफ का पैसा मैंने यूज किया, बूट स्ट्रैपिंग अमाउंट था मेरे पास में, और थोड़े टाइम के बाद पता लगा वो तो खत्म हो गया. और अब क्या करें? तो सिचुएशन ऐसी आई कि सप्लायर आपके पास में खड़ा हुआ है, आपको स्टाफ की सैलरीज देनी है, आपके पास 25 या 30 रुपए आपके पॉकेट के अंदर और आपको सरवाइव करना है. तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आपको अपने आप को हैंडल करना पड़ता है, जहां पे आप कहते हैं रेजिलिएंट थिंकिंग काम करती है. ये सब आइडिया एक्चुअली वहीं से हम लोगों को मिले. और मैंने उस आर्टिकल में एक इंसिडेंट भी लिखा था कि मेरी पॉकेट में सिर्फ 30 रुपए थे और मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, और मेरे से जो है उस होटल वाले ने मेरा पेन मांग लिया कि मैं आपको खाना तो ऑफर कर दूंगा, लेकिन आप मुझे पेन दे दीजिए, क्योंकि मुझे पेनों का बहुत शौक है बहुत पहले से. तो मैंने उसको वो पेन तो दिया, लेकिन मुझे आइडिया मिला कि जो मेरे पास अभी असेट्स हैं, अगर मैं उनको सेल करूंगा तो हो सकता है मैं अपनी कंपनी को सेव कर सकता हूँ. और मैंने एग्जैक्टली वही किया, और उसके बाद 180 डिग्री का शिफ्ट आया. प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 2x हुई, और प्रोडक्ट जो है मार्केट में एक्सेप्टेंस उसकी काफी बढ़ गई. तो एक छोटा सा आइडिया जो है, जो ढाबे वाले ने मुझे दिया था, वो उस टाइम पर काम कर गया. और मैं अभी भी उस ढाबे में कई बार जाने की कोशिश करता हूँ कि वो आदमी मुझे मिले. 1-2 बार मैं गया भी, लेकिन वो मुझे कभी मिला नहीं. लेकिन वो एक आइडिया था जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज करी. और उसके बाद हम लोगों ने सिंगापुर, इंडिया, नेपाल, इन जगहों पर अपनी ब्रांचेस स्टार्ट करी, और कंपनी के प्रॉफिट को हम लोग जो है 3x 4x तक लेके गए हैं. और अभी हमारा टारगेट नेक्स्ट 3 इयर्स का ये है कि हम कम से कम इसको 1000 करोड़ की कंपनी बनाएं आने वाले 3 सालों के अंदर. और इनफैक्ट कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी आगे आ रही हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए हमारे साथ में. कुछ टॉप लेवल बी स्कूल्स भी हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया. मैं अभी नाम कोट नहीं करूंगा, बिकॉज MOU जो है अभी प्रोसेस के अंदर है. तो जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है. हाँ, मैं स्टार्टअप्स को ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि आप बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ना लें. अगर आपका कोई प्रोडक्ट है या कोई प्लेटफॉर्म है आपके पास में,
तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए उसके लिए, और 1 या 2 साल में आप अपने प्रोडक्ट को या अपने प्लेटफॉर्म को कंक्लूड मत कीजिए कि ये सक्सेसफुल है या फेल्योर है। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने वेंचर को, बिकॉज टिल द टाइम यू आर नॉट गोइंग टू ट्रीट योर वेंचर एज ए किड, राइट, और योर चाइल्ड, यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। कहते हैं ना कि बच्चा जैसा भी होगा वो होगा तो अपना ही, राइट, और उसको Right. हमारे को लास्ट तक उसको सक्सेसफुल हमें बनाना ही पड़ता है। तो अगर इस तरीके के हमारे पास में थॉट है, तभी जाके हम अपनी जर्नी के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स आए हैं इन 2014 से लेकर 2021 तक, क्योंकि हमने डिमोनेटाइजेशन भी देखा है, हमने जीएसटी के प्रोसेस को भी फॉलो किया, हम ये पैंडेमिक में भी सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपकी टीम के साथ शेयर करना चाहूंगा, वी आर स्टिल अ जीरो डेप्ट ऑर्गेनाइजेशन, and we have not taken even a single penny from outside world, not even a bank, not even from our uncle auntie and all that, right? हमने कुछ भी नहीं किया, जो किया ऑर्गेनाइजेशन ने खुद अपने सेल्फ सस्टेनेबिलिटी मॉडल के ऊपर हमने काम किया है, और हम इस मॉडल के ऊपर इसको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर भी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो फंडिंग के लिए लगभग 6 से लेकर 8 महीने तक का वेट करते हैं, उनका वेटिंग टाइम जो है 6 से लेकर 8 महीने तक का है आज के प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर। तो क्या हम ये 6 से लेकर 8 महीने का जो वेटिंग टाइम है हमारा, उसको सेव कर सकते हैं? इसका मैं एग्जांपल आपको ऐसे देता हूं कि 1000 प्रपोजल जो है एक फंडिंग एजेंसीज के पास जाते हैं आज की डेट में, राइट, उनमें से 2 या 3 लोगों को फंडिंग मिल पाती है। तो बाकी के जो लोग हैं उनको फंडिंग बेसिकली नहीं मिलती है, वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं। तो क्या इस तरीके के वेंचर्स को हम अपने मॉडल के थ्रू सेव कर सकते हैं? इसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। अगर ये सेल्फ सस्टेनेबिलिटी मॉडल अगर हमारा बन जाता है और हम लोगों को ये सिखा सकें कि आपको बेसिकली फंडिंग की जरूरत क्यों है, आप सेल्स के ऊपर क्यों नहीं फोकस करते, या बाकी के जो पैरामीटर्स हैं अगर उनके ऊपर आप फोकस करें, तो आप सेल्फ सस्टेनेबिलिटी मॉडल पे आप काम कर सकते हैं। यू विल बी अ जीरो डेप्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर तक इस मॉडल को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, ऐसा मेरा अपना मानना है, क्योंकि टीम्स के ऊपर काम कर रही है, रिसर्च हमारी चल रही है, हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं, और अगर ऐसा हो जाएगा तो आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब जो है चेंज हो सकता है स्टार्टअप्स के लिए। Right, sir. Yeah. That's so inspirational and commendable, sir. It was wonderful. Sir, जैसे हमने देखा कि पिछले साल और खैर अभी भी we have been affected by pandemic, right? All the organizations, every venture has been affected directly, indirectly by this pandemic. So, what challenges did your venture face during the pandemic period, and how did you overcome those hurdles? Okay. काफी लोगों ने इस पेंडेमिक को एज ए चैलेंज लिया, लेकिन इस पेंडेमिक में हम सबने बड़ा एंजॉय किया, टू बी ऑनेस्ट विद यू। हम लोगों को ऐसा लगा कि थोड़ा टाइम मिल गया, और हमारा जो डोमेन और प्रोफाइल है वो इस तरीके का है कि हमारे को अपना जो है माइंड बड़ा हेल्दी रखना पड़ता है, तभी जाकर हम कोई रिसर्च या कोई इनोवेशन कर सकते हैं। तो इस पेंडेमिक के टाइम के अंदर हमारी पूरी टीम ने 1200 से ऊपर आर्टिकल्स पढ़े इनोवेशन के ऊपर, और हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जितने भी वर्जन्स थे वो हमने सब पढ़े, और उसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगा कि यार हम कुछ ऐसा करें कि जो तूफानी हो जाए, राइट, हमने यही वर्ड यूज किया था अपने ओपन फोरम में, यार कुछ ऐसा करते हैं जो तूफानी हो जाए। तो टीम ने डिसाइड किया कि हम एक बुक लिखते हैं इस पेंडेमिक के अंदर। हमने ये मार्च अप्रैल की बात होगी 2020 की, तो हमने सोचा चलो इसके ऊपर एक किताब लिखते हैं, कि हमने इतनी रिसर्च कर लिया कि इस पर किताब बड़े आराम से लिखी जा सकती है, और हमने उसी को एक फॉर्मल शेप दे दिया जो हमने रिसर्च किया था पिछले कुछ सालों में, प्लस जो हमने आर्टिकल्स पढ़े थे, हमने उसके बेसिस पे इस बुक को हमने पब्लिश कर दिया। जब इस बुक को हम इंडियन पब्लिशर्स के पास लेके गए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो किसी ने भी इस बुक को पब्लिश नहीं किया उस लेवल पर, और इनफैक्ट 250 रुपए में भी इस बुक को पब्लिश करने को तैयार नहीं थे। फिर हम फाइनली जब हम इंटरनेशनल पब्लिशर्स के पास इस बुक को लेके पहुंचे, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, और फाइनली वाइली ने इस बुक को पब्लिश करने के लिए एग्रीमेंट दिखाया, और ये बुक पब्लिश हुई वाइली के थ्रू, और वाइली ने इसकी कॉस्ट जो है 645 रुपीज रखी है, और वाइली का अपना इंटरनल टारगेट काफी अच्छा है इस बुक को सेल करने के लिए, नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया एज वेल। सो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम लोग डोमेस्टिक होती हैं तो हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमने इस पेंडेमिक को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया, अपने कॉम्पिटेंस लेवल को इम्प्रूव किया, और हमने आगे के लिए स्ट्रेटेजी अपनी सेट करी कि हम आगे अपने वेंचर को किस तरीके से लेके जाएंगे। कुछ एंजल इन्वेस्टर, आप ये लगाइए कि आज की डेट में लोग एंजल इन्वेस्टर के पास जा रहे हैं, कुछ एंजल इन्वेस्टर्स ने हमारे को बोला कि दे आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन आवर वेंचर, एंड द टॉक्स आर ऑलरेडी गोइंग ऑन। सो मे बी दैट एनी मोमेंट ऑफ टाइम
based upon agreement, we may or may not accept the funding criteria, because हमें ऐसा लगता है कि हम self sustainability model पे जो काम कर रहे हैं वो ज्यादा better है rather than giving your equity to someone. Yeah. हम लोग उस मॉडल पे भी काम कर रहे हैं, देखते हैं अगर हमें अच्छा लगेगा, अगर टर्म्स एंड कंडीशन बहुत अच्छी होगी और हमें ऐसा लगेगा कि हमें जरूरत है, तभी जाकर शायद हम उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो हम रिजेक्ट भी कर देंगे. That's great, sir. So, sir, जैसे आप एक venture already आप उसके founder हैं, sir. So, what according to you are the important qualities of a person who wishes to start his own venture? ओके, आपको सबसे पहले पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी के अंदर, बिकॉज पेशेंस इज गोइंग टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द एंटायर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी. If you look at most of the startups, what they are doing, they are basically starting a venture, waiting for 1 or 2 years, and after that what they are doing, they are usually going to sell it, and they just wanted to earn the initial profits, which should not be the criteria actually. You need to keep some patience so that you can take your venture not only at domestic level but at an international level. And this is what I am teaching to my guys here, that you need to keep some kind of grit and patience in your venture, so that you will be a global company and you should work at a global level only. Then only we can say that India is going to be a innovative hub, or we can say that India is going to produce more entrepreneurs. So this is what our thought is actually. Right, sir. Sir, जैसे आपकी team है, you are already you're already present in Singapore, in India, in Nepal. So you must be having a great team, right? I have also visited your website wherein you have team with brilliant profiles as well, sir. So what is the importance of a good team in any venture, in any business, sir? मेरे ख्याल से अकेला तो कोई भी आदमी नहीं चल सकता, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी टीम बहुत स्ट्रांग है, देन ओनली यू कैन डू मिरेकल्स. बिल्डिंग ब्लॉक्स हम लोग जब बोलते हैं, इनफैक्ट जब आपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में जब हम इसको पढ़ाते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स, one person cannot do each and every activity. There has to be individuals who will take care of each and different kind of activities to take your venture to the next level. So team is basically plays a very significant role in the overall journey of entrepreneurship. So I strongly believe you need to keep some guys who are fresher in nature. Plus, we need to maintain the gender ratio as well, because we are planning to keep this gender ratio of up to 40% in our organization. We may go up, but as of now, we are planning to keep this 40%. The third important point which we are going to take care in the next 1 or 2 years, that we are going to hire few people who will be specially abled, so that we can also provide them opportunities, and they will also feel that they are the part of the team. Not only team, but they will be the part of the core team, where they will contribute with their brain, with their capabilities which they are having. So team always plays a significant role, and you need to diversify this, not only in one direction but in multiple direction, so that all the people will work together. They could be from different culture, but team really plays a very significant role. Without team, you cannot proceed further in this journey. Right, sir. So sir, like जैसे हम देखते हैं कि आजकल स्टार्टअप शुरू होते हैं क्योंकि वो बहुत पैशनेट होते हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस और कुछ हर्डल्स आने के बाद they just fall apart. They are not even able to handle criticism as well. So criticism की जब मैं बात करती हूँ, मैं यहाँ पे client feedback की के context में बात कर रही हूँ. So how important is your client to you, and what do you think is the value of customer feedback, sir? देखिए, जो कस्टमर का फीडबैक है, दैट फीडबैक विल टेक यू टुवर्ड्स कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, सो दैट कस्टमर will get his the value proposition of his money. The ultimate goal of an organization should to provide value to the end customer, because by end of the day, who is going to pay you? Right? Your customer. Your customer is going to pay you the money, and based upon that money, you are going to distribute the salaries of your employees. So we need to keep the customer feedback and the customer satisfaction in mind, so that customer can give us the recall value. Because this recall value is something which is very important, because I strongly believe it is always better to sell 10 products to one customer rather than going to 10 customers and selling 10 different products.
right? Because in that way you can save up to 40% of your time, cost and efforts. So this is something which is very important. एक ही customer को 10 product दो आप, 10 अलग-अलग customer के पास आप मत जाइए, आप अपना 40% revenue बचा लेंगे इससे. Right, sir. That was very important and a very valuable input for our viewers, sir. Sir, who have been your greatest supporters in your journey? Definitely, still I am having one slip which has been written by my kids and my wife कि पापा हम आपके साथ हैं, because ups and downs थे इस वेंचर के अंदर, और कई बार जब आप घर में पहुंचते हैं और आपको ये पता लगता है कि कल आपके बच्चों की फी पे करनी है और आपके पास पॉकेट में पैसा नहीं है, आप ये सोच के देखिए कि आपके बच्चे और वाइफ एक छोटी सी स्लिप लेकर आते हैं और उस पर लिखा रहता है कि पापा और मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ. तो वो जो एक फीलिंग होती है और वो एक जो इमोशन होते हैं ना, वो आदमी को हमेशा आगे लेके जाते हैं. और मैं खुद ये बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि आदमी कभी भी बाहर से नहीं हारता, वो हमेशा अंदर से हारता है. मतलब जो इनसाइड फैमिली मैटर्स होते हैं वहां से हारता है आदमी, बाहर तो सबसे लड़ लेता है. तो मेरा मैसेज सभी के लिए ये रहता है कि आप अपनी इंटरनल लाइफ को, मतलब जो आपकी अपनी घर की जो चीजें हैं उसको आप प्रॉपर तरीके से बैलेंस रखिए. बाहर तो आप जंग 100% जीत जाएंगे, बाहर की जंग तो बहुत आसान है, वो घर की जंग बहुत डिफिकल्ट होती है. अगर वो आप एक बार जीत गए ना, तो फिर आपने जंग जीत लिया. आई एम 100% श्योर एंड कॉन्फिडेंट अबाउट दिस स्टेटमेंट. सो आई एम रियली थैंकफुल टू माय वाइफ एंड माय किड्स. दे ऑलवेज सपोर्टेड मी इन दिस जर्नी, एंड you can't believe that they never asked and demanded in the last 7 years कि हमें कहीं पे घूमना है या हमें कोई नए कपड़े दिला दो, something like that. तो दिल और दिमाग में रहती है चीजें, और आने वाले टाइम में जो उनके ड्रीम्स हैं उनके लिए मैं कमिटेड हूँ कि मैं भी डेफिनेटली फुलफिल करूंगा. लाइक अगर मेरी बेटी कहती है कि मुझे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में पढ़ना है, तो मैंने उसके लिए पूरा प्लान किया हुआ है कि हाँ मैं उसको वहाँ पढ़ाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे ड्रीम फुलफिल किया, मेरी बारी है कि मैं उनके ड्रीम्स को फुलफिल करूँ. Beautiful answer, sir. Beautiful. Sir, we would also like to know about the Dr. Kalam India Foundation initiative of yours, sir. ओके, ये इनिशिएटिव मेरा, मिस्टर सुधाकर सिंह प्लस मिस्टर विकास सैनी, हम तीनों का है. और हमने ये अभी कुछ महीने पहले ही हमने बनाया था. हम टिपिकली जिसे कहते हैं क्नॉट प्लेस में एक ठेले पे बैठ के मतलब खड़े होकर चाय पी रहे थे, और वहां पर ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा लगा कि यार कुछ डिफरेंट करते हैं, सो दैट हम ये इनोवेशन को ना एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाए. तो इसके लिए हमने डॉक्टर कलाम इंडिया फाउंडेशन को एस्टेब्लिश किया. उसी दिन हमने इसको एस्टेब्लिश किया, और आज की डेट में हमारे पास ग्लोबली अगर मैं बात करूं, लगभग 14 से ऊपर कंट्रीज के लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और लगभग 250 एजुकेटर जो है हमारे पास आज की डेट में ऑलरेडी अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म पे. मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे और देता हूँ कि कलाम इंडिया फाउंडेशन का मोटो क्या है. आप ये देखिए, इस पेंडेमिक में बहुत सारे प्रोफेसर्स ने, टीचर्स ने जॉब अपनी लूज करी है. Yes, sir. राइट. Right. काफी लोग इतने परेशान हैं मेंटली भी, उनको ऐसा लगता है कि उनको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो हम कलाम इंडिया फाउंडेशन के थ्रू उन एजुकेटर्स को और उन जो टॉप लेवल हमारे पास जो प्रोफेसर्स हैं और जो अपनी जॉब को लूज कर चुके हैं, हम चाहते हैं उस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उनके लिए कुछ और बेहतरीन कर सकें, और उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाकर हम उनको इंडिया के अंदर ही नहीं, हम उनको ग्लोबली रिकॉग्नाइजेशन दिलवाएं. हम उसके लिए काम कर रहे हैं, हम नए बिजनेस मॉडल्स उसके लिए बना रहे हैं. और दूसरा एक बहुत फेमस सेइंग है सुगंधा कि घर जो है ना वो पैसे से चलता है, इमोशन से तो नहीं चलता. Right, sir. राइट. तो उस चीज के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं अभी कि हम उन लोगों को कुछ रेवेन्यू और कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोग अपने वेंचर के थ्रू दे पाए, क्योंकि एक बहुत फेमस सेइंग है कि चैरिटी करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है. Correct. तो स्किल सर्टिफिकेट जो है वो कॉन्टिन्यूसली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है और कलाम इंडिया को सपोर्ट करेगा. जितने भी एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, अगर उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है कहीं पर, तो कलाम इंडिया फाउंडेशन जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और कोशिश करेगा कि उनको एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म तक हम छोड़कर आए, जहां पर वो आने वाले टाइम में ये बोले कि मैं कलाम इंडिया के साथ ही जुड़ना चाहता हूँ, मुझे आगे की जर्नी ट्रैवल नहीं करनी है. तो हमारा मोटो कुछ इस तरीके से है. हम लोग इस पे काम कर रहे हैं क्योंकि नया वेंचर है, थोड़ा टाइम लगेगा. दूसरा, कलाम इंडिया के थ्रू हम लोग एक रूरल इनोवेशन को प्रमोट करना चाहते हैं. इसके लिए स्किल सर्टिफिकेट ने एक स्पेशल फंड जो है अलग से अलोकेट किया है डॉक्टर कलाम इंडिया फाउंडेशन के लिए, जहां पर हम जैसे किसी भी कस्बा या गांव या कोई डिस्ट्रिक्ट हमारे पास में है इंडिया के अंदर, हम वहां पर जाके बच्चों से मुलाकात करेंगे
और उन बच्चों को बेसिकली प्रमोट करेंगे इनोवेशन के लिए, क्योंकि गांवों के अंदर इनोवेशन का मतलब होता है उनको 1000-2000 या मैक्सिमम 5000 रुपए तक चाहिए होते हैं, और वो बच्चा जो है वो एक इनोवेशन कर सकता है। इसको मैं कुछ ऐसे डिफाइन करूंगा कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग local jugaad system of India into formal structure of innovation. So this is what is our theme, so that India can be an innovative hub, because we need, now the time has come to change the jugaad system into formal innovation structure, because government is providing very good support to the people who are actually innovator by nature, but we need to identify such kind of innovators in India, because there is no such mechanism available. हमारा टारगेट रहेगा कि हम स्कूल ऑफ इनोवेशन अपना स्टार्ट करें बाय एंड ऑफ दिस ईयर, और स्कूल ऑफ इनोवेशन में पहले हम 100 लोगों को जगह देंगे, और उन 100 लोगों का जो बोर्डिंग, लॉजिंग, फूड, ट्रैवल, जो भी उनका खर्चा है या जो भी उनको रिसोर्स कॉस्ट चाहिए होगा, वो स्किल सर्टिफिकेट अलॉकेट करेगा उन लोगों को, और उनके इनोवेशन को स्किल सर्टिफिकेट आगे लेके जाएगा। डोमेस्टिक लेवल पर नहीं, हम इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी लेके जाएंगे। और इस जर्नी के अंदर हमें लगता हो कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहीं पर अगर हम साथ दे सकते हैं, तो वी विल बी हैप्पी टू सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज जो मोदी जी का विजन है, हम इन लाइन उस विजन के ही अकॉर्डिंगली काम करना चाहते हैं, और जहां कहीं पर भी हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहेंगे जर्नी के अंदर, हम डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। द एंटायर टीम विल बी अवेलेबल 24/7 टू सपोर्ट द नीडी पीपल ऑफ इंडिया। So this is what is the vision and mission statement of कलाम्स इंडिया फाउंडेशन, एजुकेटर्स को आगे लेकर आना और इनोवेटिव हब बनाना इंडिया को। Yes, sir. I think this is the need of the hour, and what a brilliant mission and vision, sir. And congratulations to you for the same, sir. और हम लोगों की तरफ से भी, अगर wherever if we can be a part of this initiative, do let us know, sir. It will be a moment of pride for us to connect with you, sir, on this platform. Yes, sir. So we talked about leadership qualities. आपने बताया कि कैसे एक अच्छे लीडर में ग्रिट और पेशेंस, ये दोनों क्वालिटीज बहुत जरूरी हैं, सर। हम सभी जानते हैं कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, व्हाट इज द बेस्ट एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ लीडर? ओके, देखिए, मैं पहले बेस्ट पार्ट की बात करता हूँ। बेस्ट पार्ट तब होता है आपके लिए, आपके वेंचर के अंदर, जब आपकी टीम सक्सेसफुल हो जाती है, राइट? बिकॉज एक लीडर की सक्सेस तभी काउंट की जाती है जब उसकी टीम सक्सेसफुल होती है, राइट? और जब टीम फेल होती है तो वो सबसे जो है ना वर्स्ट सिचुएशन होती है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लीडर के ऊपर होती है। लाइक जो लोग, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो लोग मेरे साथ 2014 से कनेक्टेड हैं, I have given them commitment that in the next 1 year, you guys will be having your own Range Rover, and this is what I have committed them, right? So this is the reward of their patience and grit. तो एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जब उसके साथ उसकी टीम होती है यहाँ पर, और वर्स्ट सिचुएशन के अंदर उस टीम को कैसे मोटिवेटेड रखना है, राइट? और किस तरीके से उनको ये बताना है कि नहीं यार कुछ नहीं होगा, तुम आगे काम करो, मैं बैठा हूं ना। सो ये जो अप्रोच होती है वो मोटिवेट करती है टीम को, और उसी से जो है टीम आगे की तरफ मूव करती है। तो मेरा अपना मानना है कि टीम की सक्सेस और फेलियर जो है वो वर्स्ट एंड बेस्ट पार्ट होती है एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर, क्योंकि हम लोग ऑन एन एवरेज 14 से 15 घंटे जो है एक साथ मिलकर काम करते हैं, और हमें ये समझ में आता है कि अगर उसके घर में कोई फैमिली की अगर प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम नहीं, वो हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर उन इश्यूज को भी हम रिजॉल्व कर दें तो वो एक हमारे लिए सक्सेस फैक्टर ही काउंट होता है। वेरी वेरी राइट सर। आप जैसे कि हम सभी जानते हैं सर दैट यू हैव बीन कॉन्फर्ड इंडियन अचीवर्स अवार्ड इन 2021 by the Indian Achievers Forum for your contribution towards nation building, sir. So अभी हम जब इससे पहले डिस्कस भी कर रहे थे, आपने काफी मैनेजमेंट थियरीज एंड सक्सेस थियरीज की बात करी। सर व्हाट इज योर सक्सेस मंत्रा? अगर मैं सक्सेस मंत्र की बात करूं तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड द स्टार्टअप्स दैट यू शुड फोकस ऑन योर ओन थ्योरी, and the formula for own theory is foresight plus insight is equal to one's own theory is equal to successful venture. तो आपको अपने सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करना है, आपको अपने डिलीवरी के एस्पेक्ट्स पे भी काम करना है, आपको एकेडमिक साइड से नॉलेज भी होनी चाहिए,
और आपको अपनी लर्निंग के साथ साथ अपने आप को प्रैक्टिशनर भी रखना है। यहाँ पे दो तरीकों से वेंचर काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर। एक है जो एक आइडिया होता है, वो कॉपी होता है और कॉपी करने के बाद उसको इंडिया के अंदर आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं। मैं कुछ कंपनीज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं इंडिया के अंदर। उन्होंने वो आइडिया कॉपी किया, लाइक अगर मैं वॉलमार्ट की बात करूं तो वॉलमार्ट का आइडिया एक इंडियन कंपनी ने लॉन्च किया, वो बंद हुई है बहुत रिसेंटली, राइट। अगर मैं बात करूं कि जो होटल इंडस्ट्री से, तो अपना एयरबीएनबी का जो फॉर्मूला था वो हमारी एक इंडियन कंपनी ने कॉपी किया। आज की डेट में वो बहुत ज्यादा टर्बुलेंस के अंदर है। ऐसे ही उबर का फॉर्मूला जो है एक और हमारी इंडियन कंपनी ने कॉपी किया। आज वो देखिए, आज उसने अपना सेगमेंट ही चेंज कर दिया, क्योंकि थ्योरी अपनी ओरिजिनल नहीं थी। वो जो थी थ्योरीज जो थी वो कॉपीड थी मार्केट से, और उस कॉपीड थ्योरीज को जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें उसके नट्स एंड बोल्ट्स नहीं पता होते, हमें एक अपर लेयर पता होती है कि ऐसा करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन उसके बैक एंड प्रोसेसेस के बारे में हमें नहीं पता होता। आज अगर आप एग्जांपल लें मैकडी का, मैकडोनाल्ड का अगर आप एग्जांपल है, तो मैकडी का जो प्रोसेस जो सक्सेस मंत्र है वो उसका बैक एंड है। क्योंकि आप जब मैकडी के काउंटर पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पे एक लड़का जो है वो बहुत तेजी से बोलता है 1 वेज बर्गर, तो 2 मिनट में वेज बर्गर आपके पास आ जाता है। तो वो उसका बैक एंड प्रोसेस है एक्चुअली, जो कोई भी इंडियन कंपनी आज की डेट में कॉपी नहीं कर पाई है। आपको शायद नरूलाज या विम्पीज के बारे में पता होगा, तो नरूलाज विम्पीज का आज की डेट में एक्जिस्टेंस बहुत कम है या प्रेजेंस बहुत कम जगहों पर है एज कम्पेयर टू मैकडी। और कभी मैकडी का नाम नहीं हुआ करता था, नरूलाज और विम्पीज से चला करते थे 90s के अंदर। आज नरूलाज और विम्पीज की प्रेजेंस बहुत कम है। तो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, क्रिएट योर ओन थ्योरी, डोंट कॉपी एंड पेस्ट। राइट सर। जी राइट। सो सर, जैसे हम इनोवेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो स्किल सर्टिफिकेट किस तरह इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए इनिशिएटिव्स ले रहा है सर, इंडिया में स्पेशली? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोग स्कूल ऑफ इनोवेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। हमारा टारगेट है कि हम इस साल के एंड तक स्कूल ऑफ इनोवेशन स्टार्ट कर दें। हमारे पास ऑलरेडी लर्निंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जो एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन फ्रेमवर्क प्लस इनोवेटिव थिंकिंग एबिलिटी टूल बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड एंड डेटा एनालिटिक्स। ये हमारे पास 3 डॉट एक्चुअली ऑलरेडी अवेलेबल है आज की डेट में। अगर हम इन तीनों डॉट को कंबाइन कर देते हैं तो ये एक इनोवेशन इंजन फ्रेमवर्क बन जाता है। तो ये इनोवेशन इंजन जो है, हम लोग जो हमारे पार्टिसिपेंट्स रहेंगे या जो कैंडिडेट्स रहेंगे जो हमारे स्कूल ऑफ इनोवेशन में काम करेंगे, ये पूरा मॉड्यूल हम उनको सिखाएंगे और इन्हीं थ्योरीज के ऊपर हम लोग उनसे काम करवाएंगे। अगर हमें इसमें लगेगा कि हमें और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेना है तो हम डेफिनेटली और टेक्नोलॉजी का इसमें सपोर्ट लेंगे और उनके वेंचर्स को जो हम सक्सेसफुल बनाएंगे। हम लोग एक डायरेक्शन में काम नहीं करना चाहते इनोवेशन के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है हमारे पास में। हमारे पास में अगर आप देखें जो सोलार या हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके लिए हमारे पास इंडिया में बहुत कम वेंचर्स हैं जो इनके ऊपर काम करते हैं। तो हमारी कोशिश रहे कि हम 360 डिग्री पे काम करें और एक इकोसिस्टम डेवलप कर सकें अपने स्टार्टअप्स के लिए, और इस इनोवेशन इंजन को हम लोग उनको सिखाएं और वो अपने वेंचर को सक्सेसफुल बनाएं और अपने प्रॉफिट्स और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट कि आप प्रॉफिट्स कमाइए, लेकिन आप अपनी लाइफ को भी एंजॉय कीजिए। एक स्टार्टअप्स के लिए मैं मैसेज जरूर देना चाहूंगा, शायद हमें किसी ने कभी नहीं बताया, कि 40 साल की एज में रिटायर हो जाइएगा। ये मैं आपको एक सक्सेस मंत्र और बता रहा हूँ कि 40 साल की एज में रिटायर हो जाइएगा, क्योंकि हमें हमेशा सभी ने ये बताया कि 58 ईयर की एज होती है रिटायरमेंट की, तो हमारे दिमाग में वही परसेप्शन रहा। आप सोचिए कि अगर मैंने आपको ये बताया कि आप 40 साल की एज में रिटायर हो जाइए और कोई 21 ईयर की एज में स्टार्टअप अपने लिए एस्टेब्लिश करता है, तो उसके पास 19 साल का टाइम है कि वो अपने आप को आगे लेके जा सकता है और 19 साल में वो मिरेकल कर सकता है, क्योंकि स्टार्टअप के लिए 3 साल से लेकर 5 साल ही होते हैं स्ट्रगल के, उसके बाद वो वेंचर सक्सेसफुल होना शुरू हो जाता है। अगर आप पहले 3 साल अगर आप निकल गए अच्छे से, तो उसके बाद आपका वेंचर जो है सक्सेसफुल हो जाता है। राइट सर। जैसा कि हम देख रहे हैं सर, आजकल यूनिवर्सिटीज में चाहे आप प्रीमियर यूनिवर्सिटीज की भी बात करें, हर यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेल्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे काफी प्रोग्राम्स चल रहे हैं सर। सो व्हाट इज योर इनसाइट ऑन दिस सर? देखिए, इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ में हमने बात करी है अभी। हमने इंक्यूबेशन सेंटर से क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज योर सिलेक्शन क्राइटेरिया टू सिलेक्ट एबीसी वेंचर। द आंसर इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी, क्योंकि टीम साइज और आइडिया के बेसिस के ऊपर इंक्यूबेशन सेंटर फंडिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ज्यादातर लोगों का यही आंसर है।
कि सर टीम अच्छी होनी चाहिए प्लस आइडिया में दम होना चाहिए, तो हम इंक्यूबेशन सेंटर में काम करने के लिए उनको अलाउ कर देते हैं और उनको फंडिंग और जो भी रिसोर्सेज चाहिए हम वो प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आइडिया और टीम साइज इन दोनों के बेसिस पे हम फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर हमारा जो फेलियर रेट है वो 90% से प्लस क्यों है? इसका मतलब जो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं गलत है, उसमें कहीं ना कहीं लैकूना है, कहीं ना कहीं उसमें गैप्स हैं, कहीं ना कहीं उसमें एयर बबल्स अभी हैं, तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी चीज के लिए हमने ये इनोवेटिव थिंकिंग एबिलिटी टूल यूज किया है और इसके थ्रू हम सिलेक्शन क्राइटेरिया ले सकते हैं कि किस तरीके का एंटरप्रेन्योर ही और शी विल बी। मैं एग्जांपल बताता हूं कि आपका वेंचर बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन कंपटीशन बीच में आ गया, राइट? तो आपके पास एक ऑप्शन ही रहती है कि भाई मैं बेच देता हूं, अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूं। लेकिन अगर मैं यहां पर अगर मैं काउंटर इंट्यूटिव थिंकिंग को यूज करूं या मैं यहां पर जो रेजिलिएंट थिंकिंग अगर मैं उसको यूज करूं या मैं फ्लेक्सिबल थिंकिंग को यहां पर मैं यूज करूं, तो मैं अपने वेंचर को ना तो सेव कर लूंगा लेकिन मैं उसको स्केलेबल भी कर सकता हूं इन थिंकिंग कैपेबिलिटीज के थ्रू। तो ये थिंकिंग कैपेबिलिटीज एक्चुअली मिसिंग है। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ आपके लिए सुगंधा, कि आपने लाइफ में कितनी बार आपका क्या मतलब इनफैक्ट हमारे लिए भी कि हमारे पेरेंट्स ने हमें कितनी बार ये बोला कि रात भर जो है सोचो, पढ़ाई मत करो, रात भर सोचो, क्योंकि हमारे को बचपन से ये सिखाया गया है कि आपको जो है काफी अच्छे नंबर लेकर आने हैं, 95% लेकर आओगे तो हम मानेंगे कि आप इंटेलिजेंट और आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। राइट सर। जबकि अब जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो आईक्यू का नहीं है, वो ईक्यू का है, इमोशनल क्वेश्चन का, जहाँ पे आने वाले कुछ सालों के अंदर हमें थिंकर्स चाहिए होंगे, हमें डूवर्स की रिक्वायरमेंट कम पड़ेंगी बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। राइट। तो ये कुछ चीजें जहां पर हमें फोकस करना पड़ेगा। Yes, sir. Any piece of advice for the startup enthusiasts, sir? एक ही चीज मैं बोलूंगा क्योंकि मेरा खुद का भी अपना मानना है कि पेशेंस, परसिवरेंस और प्रोसेस, ये तीन चीजें ऐसी हैं, अगर हम इन तीनों चीजों को इंटीग्रेट कर दें तो मैं श्योर हूं कि सूनर और लेटर आपका वेंचर जो है वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। और आप सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर। और कई बार ऑर्गेनाइजेशंस क्या काम करती हैं कि वो सस्टेनेबिलिटी को छोड़कर डायरेक्ट स्केलेबिलिटी पे जाना चाहती हैं, क्योंकि जो आज का जो यूथ है, जो 25-26 साल के जो हमारे यंग जनरेशन जो है, उनका थॉट ये रहता है कि हम 2-3 साल में अपने प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। लेकिन लाइफ को आप एंजॉय कीजिए, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में भी आप जाइए। और अगर आपने प्रोसेस ओरिएंटेड अपने आपने अप्रोच रखी है तो मैं 100% श्योर हूं कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो स्केलेबल 100% हो जाएगा। प्रोसेस आपको ऐड करने पड़ेंगे, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, परसिवरेंस आपको रखनी पड़ेगी, तो आपका वेंचर 100% सक्सेसफुल है। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है। राइट सर। सर, एक बार हमारा एक पहले डिस्कशन हुआ था जिसमें आपने बात करी थी कि अबाउट एन एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट इज एबल टू आइडेंटिफाई योर पर्सनालिटी ट्रेट्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा उस पर जरा बताइए सर कि व्हाट इज इट अबाउट। देखिए, ये जो हमने इनोवेटिव थिंकिंग एबिलिटी टूल जो डिजाइन और डेवलप किया है, ये स्कूल से लेके कॉर्पोरेट लेवल तक सभी लेवल पे एप्लीकेबल होगा, राइट? क्योंकि इनोवेशन की रिक्वायरमेंट सिर्फ कॉर्पोरेट को नहीं है, इनोवेशन के लिए कल्चर हमें स्कूलिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? और ये जो आईटेट का जो प्लेटफॉर्म है हमारा, मैं एग्जांपल बताता हूं, अगर हमने 8th क्लास के किसी बच्चे को ये प्लेटफॉर्म दिया तो हमने इसमें कुछ कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क यूज किया थ्रू एआई। अगर मैं किसी पेरेंट्स को ये बता सकता हूं कि आपका बच्चा जो वो पेसिमिस्टिक नेचर से, वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है नेचर से, तो शायद पेरेंट्स के पास में 4 से 5 साल का टाइम रहेगा कि वो अपने बच्चे के बिहेवियर को चेंज कर सकें या उसके एटीट्यूड को या उसके माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज वो बच्चा आगे चलकर बॉटलनेक बनता है पेरेंट्स के लिए, राइट? सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने एक बच्चे को ये देख लिया कि ये बच्चा 8th स्टैंडर्ड से ही इस बच्चे के पास डीप थिंकिंग कैपेबिलिटीज हैं और इसके पास लीडरशिप क्वालिटीज हैं, तो उसको जरूरी नहीं है कि मुझे बीटेक या एमबीए करानी है, मुझे उसको इसी तरीके के लीडरशिप रोल के लिए एनकरेज करना चाहिए। तो इस तरीके के जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो बेसिकली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और आप अपने बच्चे को उस डायरेक्शन में प्रमोट कर सकते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आज के डेट में
हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि 2 साल के बाद किसी एबीसी पर्सन को हार्ट अटैक होना है। Hmm. तो हम उसके बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो हार्मोनिकल जो चेंजेस हो रहे हैं, उसके बेसिस के ऊपर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो सिमिलरली ये जो आईटेट का प्लेटफॉर्म है हमारा, Right, तो sir. हम बच्चों को और पेरेंट्स को प्रोएक्टिवली बता सकते हैं कि आपके बच्चे में ये क्वालिटीज हैं और ये उसमें नेगेटिव चीजें हैं जिसको आप ओवरकम कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। Right, तो sir. इस तरीके से हमने टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज किया है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए। Sir. Thank you so much, sir. Thank you so much for being with us today. We Uttarakhandis are so proud of your achievements, sir. And thank you so much for sharing your inspiring entrepreneur journey with us. And I'm sure आज के इस इंटरव्यू में हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत सारे टेक अवेज हैं, चाहे आपने ग्रिट और पेशेंस की बात करी, परसिवरेंस की बात करी है सर, कस्टमर फीडबैक की चाहे हमने बात करी हो, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स के बारे में बात करी है सर। तो thank you so much that you took out time from your valuable schedule, sir. इतना busy schedule था आपका, आपने हमारे लिए time निकाला, sir. And thank you so much for believing in us and supporting our initiative, sir. Thank you so much, Sumandan. I wish you very best for your venture as well. And वही सक्सेस मंत्रा, पेशेंस रखिएगा, डेफिनेटली चीजें इंप्रूव होंगी। Yes, sir. Especially, sir, जो आपने बात करी sustainability की, I think that is the essence today, and that is very, very important for all startups to understand that we should focus on sustainability rather than scalability in the first shot itself. We should take time to This, scale. exactly. This is not the time for scalability actually. If you are actually looking for scalability, just wait for another 3 or 4 months because this pandemic is not yet over. It may Yes. take another 3 to 4 months time. Yes. And after that, I'm sure that market will be all yours. Whatever the research and development you want to do with your product and platform, please go ahead and do it. Yes, But sir. till that time, hold on your horses for some time. And I'm sure that your profits will be 3x. Right. Not the right time to invest huge money, but take tiny steps only. This is Right. what the message I would like to conclude. Thank you so much, sir. Thank you for joining us today. Thank you so much, Sugandha. Bye. Have a nice evening. Yes, sir. Bye bye.